Yes, so we have full house of CMA Inter All India Rank. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट्स जो है वो आ चुके हैं एंड काफी सारे बच्चे जो है वो क्लियर नहीं कर सके हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि हाउ शुड वी अप्रोच, ओके, सो दैट वी आल्सो क्लियर विद गुड मार्क्स, वी आल्सो स्कोर अ रैंक. एंड आई हैव MEPL All India rankers with me, and it's great to know that these guys have performed extremely well. Entire credit goes to them, their hard work. And now we are going to decode the secret mantras to secure an All India rank. Okay, so whatever rank holders we are having right now, it is of CMA Inter. For CMA final, I will be recording a separate session, but every student, irrespective of the course and level, should watch this video, because the success mantra of getting All India rank remains same in all the courses, in all the levels. So first of all, guys, congratulations to all of you. Raju, then Pragati, then Sawan, then Lakshmi, Jibendra, Suman, Saurav, Aryan, congratulations, and big round of applause for all of you for securing wonderful All India rank. So congratulations, guys. Now, this is going to be an open house discussion. Okay. सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना ऑल इंडिया रैंक जो है वो बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आप कहां से हैं, किस शहर से हैं, फ्रॉम विच सिटी आर यू बिलोंगिंग टू, एंड along with your AIR. ठीक है, anyone start, please start. Please unmute yourself, guys. Yes, unmute yourself, you have the power to unmute, you need to unmute. Good evening, everyone. This is Lakshmi Sai. I have achieved AR 36 in CMA Inter, and I am from Warangal, Telangana. Yes, from Telangana. Excellent. Congratulations, Lakshmi Sai, for AR 36. Yes. Come on, go on, unmute yourself. I am Jivendra. Good evening, Yes, Javindra, go ahead. I have secured AIR 30 in CMA Inter exams. I am from CMA Inter. Kolkata. Kolkata itself. Wow. Kolkata. अरे भाई आए नहीं मिलने. सर आएंगे. Okay. मतलब वर्चुअली सब कुछ कर रहे हैं. Great, great, great. प्रगति आई थी मेरे से मिलने. Yes. Good evening, everyone. I am from Bokaro, Jharkhand. I secured rank 39 in CMA Inter. Great, congratulations. Thank Yeah, you. Saurabh, go ahead. मेरा नाम यस सर, तो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है मेरे एरिया में. कोई बात नहीं. तो मेरा नाम सौरभ थापा है, मैं आसनसोल से हूँ. मेरा AIR 5 आया है. Great, congrats. थैंक यू सर. Suman. Hello everyone, my name is Suman Agarwal and I am from Asansol and I have secured. अरे पड़ोसी, दोनों पड़ोसी. वाओ, दोनों जानते हो एक दूसरे को? आसनसोल से हो? नहीं सर. देखो, the world is so small. अभी जान के. Wow. Aryan. Hello everyone, this is Arihant here. I am from Kota, Rajasthan, and I got a AIR of 47. चलो बढ़िया. कोटा में हम लोग के भी कोई कॉमर्स वाले बच्चे हैं, नहीं तो खाली वो इंजीनियरिंग वाले भरे हुए हैं. ग्रेट अरियन, ग्रेट. राजू. Hello everyone, my name is Suyaris Raju and I'm from Kharagpur. My all India rank is 38. Great. Sawan. So good evening everyone. I am Sawan Kumar and I am from Vijayawada, Andhra Pradesh. I have secured All India rank 38. Great. So there is a joint rank of Raju and Sawan. Great, great. Awesome, 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 guys. Now, देखो, adversities तो थे. You cannot deny that the exams were very smooth. Okay, you cannot claim that the exams were very smooth. Okay, you cannot deny that there were no adversities at all, and you cannot say that exams were very smooth sailing. एडवर्सिटीज तो थे, और आप लोगों ने सारे एडवर्सिटीज को झेलने के बाद भी ऑल इंडिया रैंक जो है वो सिक्योर किया. ठीक है, तो हाउ डिड यू मैनेज, मतलब ये कैसे मैनेज किया? सबका फर्स्ट साइकिल में तो हुआ एग्जाम की, सेकंड साइकिल में भी कुछ लोग हैं यहाँ पर? सबका फर्स्ट साइकिल था क्या? एनीवन सेकंड साइकिल? सेकंड साइकिल का कोई है क्या यहाँ पर? हमारे बीच में कोई सेकंड साइकिल का है क्या? ओके, सो ऑल गेव एग्जाम्स फ्रॉम द फर्स्ट साइकिल इटसेल्फ. ओके, ग्रेट, ग्रेट, ऑसम. So tell me, my first question is कि before how many months prior to the exam the syllabus of a student should get complete? कितना महीना पहले syllabus complete हो जाना चाहिए? Okay, I'll have to name
the students, then only they will answer. Hey Bhagwan, अरे it's an open house, anyone can answer. Go ahead. Minimum 3 months. 3 months. 2-3 Okay, 3 months. महीना पहले जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं, दोनों ग्रुप अगर साथ में दे रहे हैं, और बिना दोनों ग्रुप साथ में दिए तो रैंक आ नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने दोनों ग्रुप दिया, इसीलिए आपका जो है वो ऑल इंडिया रैंक आया। अगर एक एक ग्रुप देते तो ऑल इंडिया रैंक नहीं आता, राइट। आप लोग सबका सिलेबस लगभग 2 से 3 महीना पहले कंप्लीट हो गया था, है ना। एकदम अपने आप को अनम्यूट पे ही 2 रखो, महीना पहले सर। अपने आप को अनम्यूट पे ही रखो। कीप योरसेल्फ ऑन अनम्यूट, नोबडी कैन म्यूट, यू आर अ रैंक होल्डर, तुमको कौन म्यूट कर सकता है। सब लोग अपने आप को अनम्यूट पे रखो। अच्छा, फिर मेरे को ये बताओ, एक दिन में जो है ना, हालांकि इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर रह नहीं सकता कितना घंटा पढ़ना चाहिए, बट फिर भी स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क सर हाउ मेनी प्रोडक्टिव आवर्स शुड वी स्टडी इन अ पर्टिकुलर डे, बताइए। Sir, 8 So to 5 9 to hours. 6, 5 to 6 hours. 5 to 6 आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स अगर आप पढ़ेंगे तो एकदम आपका हो productive. जाएगा, आप बोल रहे हैं। ओके, ग्रेट। एंड दिस क्वेश्चन गोज टू सौरभ। सौरभ, तुम मेरे को बताओ, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करेंगे इतना लंबा सिलेबस, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी डे ऑफ, आल्सो वी आर अपीयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप, वी आर नॉट गेटिंग एनी सिंगल डे ऑफ आल्सो। सो हाउ टू रिवाइज ह्यूमंगस सिलेबस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 to 7 आवर्स जस्ट बिफोर डे बिफोर एग्जाम। समरी नोट्स होना जरूरी है सर। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, समरी नोट्स होना जरूरी है। और सर न्यूमेरिकल जो मतलब जो प्रैक्टिकल सर चैप्टर मतलब सब्जेक्ट है सर, उनके लिए सर थोड़ा थोड़ा सम टिक मार्क होना चाहिए सर, जो मास्टर प्रॉब्लम होगा सर, ताकि सर उसको देख लेते हैं तो सर चैप्टर हो जाएगा मेरा पूरा। एग्जैक्टली, जब 6 महीना पहले ही हम लोग प्रिपरेशन चालू कर दिए थे, at that time only we should mark the sums that we need to practice day before exam, that we need to see day before exam. Yes, और sir. सारा सम्स तो करना पॉसिबल नहीं है, जो एडजस्टमेंट ट्रिकी लगे उसको पहले से गोला कर लो, सर्कल कर लो, that day before exam I have to see only this adjustment in this particular sum, and few Yes, sums I will not see because they were very easy, I did not face any problem, so I will not see those few sums before exam. Selected number of sums, and that too marking particular adjustments that I need to see before exams, this is very important. Yes, and summary notes भी रहना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये दो चीज आपको अच्छे से करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है पूरा 100% सिलेबस रिवाइज करना एग्जाम के एक दिन पहले? नहीं सर, नहीं होता है सर 100%। नहीं होता है, तो उस समय फिर कॉन्फिडेंस तो शैटर हो जाता है यार, मैंने ये रिवाइज नहीं किया, वो रिवाइज नहीं किया, तो कॉन्फिडेंस शैटर हो जाने के कारण बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे डिफर कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं सर, मतलब पहले तो सर 1 या 2 बार तो सर 2 बार तो हर कोई रिवीजन कर ही लेता है सर। Absolutely. एग्जाम के सर एक दिन पहले सर जो गैप है सर उसमें 6-7 घंटा मैक्स टू मैक्स सर किसी को मिल रहा है, तो सर पूरा सिलेबस रिवाइज करना तो सर इम्पॉसिबल है। तो सर Yes. जो पोर्शन है जो पहले सर थोड़ा ट्रिकी था या अभी सर थोड़ा ओझल हो गया है सर, वो सब पॉइंट देख लेना ही सबसे बेटर होता है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। Got it. Great, great, great. Awesome. जबरदस्त, सही बोला। एनीवन वुड लाइक टू ऐड ऑन एनी पॉइंट कि एक दिन पहले जो है क्या रिवीजन होना चाहिए, कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? प्रेशर कैसे मैनेज करे, ठीक है, मेंटल कैसे स्ट्रांग रहे मेंटली? एनीवन वुड लाइक टू ऐड ऑन एनी पॉइंट? इंस्टीट्यूट का वर्कबुक जरूर देखना चाहिए, उससे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। एब्सोल्युटली, यस। आपके मैराथन्स देखना चाहिए। वो Yes, तो sir, लास्ट में it's रिवीजन। true. Yes, sir. One Exactly. Marathons helps a lot. लॉ स्पेसिफिकली सारे सब्जेक्ट के मैराथन्स जो है वो तो देखने चाहिए, बिकॉज लास्ट में इतना लंबा सिलेबस को कवर करना, यू नो, ग्रेट चैलेंज, ग्रेट चैलेंज। और तुम लोग का तो हम लोग बूस्टर रिवीजन भी लिए थे, इफ यू रिमेम्बर। तुम लोग तो इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, हम लोग तो इंटर और फाइनल दोनों के लिए बूस्टर रिवीजन जो है साइमल्टेनियसली चला रहे थे। हालत खराब हो गया था उस समय, पसीने छूट गए थे। तो आई डू होप दैट इट हेल्प्ड यू, मैराथन, रिवीजन वीडियोस, बूस्टर्स, बिकॉज एवरीथिंग वाज सो ग्लूमी कि आज का पेपर देने के बाद लगता था कल का पेपर देने जाए कि नहीं जाए। Oh my God, that was a big challenge, but all is well that ends well. Okay. Yes, Raju, why don't you share your preparation strategy? Raju, please share your preparation strategy. How did you manage? तो पहली बात तो मैं मतलब जैसे 8 घंटा था एग्जाम के लिए, मतलब गैप था, तो फर्स्ट 1 आवर तो मैं एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दिया था। फिर नेक्स्ट जो है, क्योंकि मैं तो रिवाइज किया था, मतलब ग्रुप 1 तो मैं शायद से 6 बार रिवाइज किया। Oh बाबा, 6 बार, my God. क्योंकि चलो मैं और जून share में करते देने जाओ वाला था, strategy. Revision जून strategy में वगैरह देने सब। वाला था मैं, जून में ग्रुप 1 देने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। और लेकिन ग्रुप 2 शायद से मैं 2 ही बार रिवाइज कर पाया। तो मतलब नेक्स्ट 7 आवर्स तो मतलब मैं जब पढ़ रहा था तभी मेरे को खुद याद आ रहा था कि मैं पहले से पढ़ चुका हूँ ये सब।
तो उतना ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा लास्ट दिन। तो वही सर, और कुछ नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम। मतलब रेगुलर रिवीजन इज द की, रेगुलर रिवीजन इज द की, गॉट इट। ओके, मूविंग ऑन टू अरियंत। अरियंत, चलो अपना सक्सेस स्ट्रेटजी बताओ, कैसे ये रैंक वगैरह तुम लेकर के आए? शुरुआत से बताओ, कैसे प्रिपरेशन की, कितना सब्जेक्ट करके पढ़ते थे? आई विल बी कमिंग एक एक करके सबके पास। अरियंत, यस। I studied like mainly for around 8 to 9 months total. मतलब साल भर पे शुरू करा था, but like it was 8-9 months where I will say I studied consistently, and I would say like consistency is the key. If you can study even 4 hours like for 12 months now, it's very easy to complete the syllabus and even do multiple revisions. That consistency is the harder part, I would say. Okay, and in the last, for as far as revisions were concerned, like especially day before the exam, I only studied few key topics which I had forgotten about or were like थोड़े difficult topics थे. बाकी I sort of was like कि already 2-3 revision तो हो चुके हैं, तो उनको देखने की जरूरत नहीं है. These I will manage. So that was my whole strategy regarding it. ग्रेट, मतलब कंसिस्टेंसी इन द की, कंसिस्टेंसी इज द की। तो 3 सीक्रेट तो हम लोग रैंक होल्डर लोग से डिकोड कर दिए। नंबर 1, समरी नोट्स होने चाहिए। नंबर 1 इज द समरी नोट्स। नंबर 2, नंबर 1 समरी नोट्स। नंबर 2 जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, पहले से क्वेश्चंस मार्क करो, एडजस्टमेंट्स मार्क करो, जो यू नीड टू अगेन रिव्यू देम अ डे बिफोर एग्जाम। एंड द थर्ड वन दैट अरियन टोल्ड वाज कंसिस्टेंसी। ओके, कि अगर आप 7-8 महीना पढ़ रहे हो दोनों ग्रुप के लिए कंसिस्टेंटली, then it is very easy to get an all India rank. Consistency is the key. मतलब ऐसा नहीं हो सकता अचानक से तुम्हारे अंदर एक दिन भूत सवार हो गया, तुम 10 दिन का पढ़ाई कर लिए और फिर 5-10 दिन तुम पढ़ाई नहीं किए, तो it is not going to lead anywhere. Right, great 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 great, awesome awesome. Yes, so we have got 3 success mantras. Now coming to Saurav. Yeah, Saurav. Yes, sir. Yeah, tell me, how did you manage? क्या हम रिवीजन का कैसे प्रिपरेशन वगैरह कैसे कि एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? तो मैं तो नॉर्मली सर 2 या 3 सब्जेक्ट उठा लेता था एक दिन का। बिल्कुल, 2 या 3 प्रैक्टिकल is रख लिए, एक optimum. थ्योरी रख लिए, और एक को सर वो मतलब थोड़ा मॉनिटर्स होता था, तो सर वो पीडीएफ से कुछ मिल जाता था, तो उसका रीडिंग कर लेते थे, मतलब ब्रेक टाइम को सर यूटिलाइज करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो 4th सक्सेस मंत्र हमारे पास आ चुका है। 4th सक्सेस मंत्र भी हमारे पास आ चुका है, और वो 4th सक्सेस मंत्र क्या है? वो 4th सक्सेस मंत्र है कि भाई एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी आपको ब्लेंड करके पढ़ना पड़ेगा, मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। खाली प्रैक्टिकल कर लिया तो भी मरोगे, खाली थ्योरी कर लिया तो भी मरोगे। सो मिक्स एंड मैच करके आपको करना पड़ेगा, राइट? और 2 से 3 सब्जेक्ट हाथ में रखो, रेगुलर रिवीजन करते समय 2 से 3 सब्जेक्ट हाथ में रहना चाहिए, राइट? कमिंग टू लक्ष्मी साई, बताइए, अपना एडवाइस दीजिए, अपना सीक्रेट शेयर करिए। Yes, sir. Actually, I have given my CA inter attempt in November 2020 only. I was That was a about to blessing give in it. disguise. CA इंटर दे दिया, बहुत चीज जो है Actually, रिवीजन करने लायक था फिर तो। yeah, I was about to give it in December 2020 only, the CMA inter, but due to COVID, I was unable to give that. So I have given in December 2021. Due to my articleship, I was unable to focus on CMA inter. Actually, I was so tense and I become so panic. But in the last 1 or 2 months, have seriously followed all your marathons, revision lectures, and which has built me confidence in me, and I could achieve the rank. I just want to tell it all that even you have the less time, don't lose hope. You can utilize it properly if you have the right teacher and right direction to go. Great, crisp and short, crisp and short, amazing, Thank you. awesome. प्रगति, बताइए, your success mantra. I did not study for 7 to 8 hours. Maximum 4 to 5 hours होता था। 4 क्लासेस किए, उसके बाद आपने जो होमवर्क दिया वो किए, जो टेस्ट के लिए बोला वो पढ़ा। उसके बाद ये था कि होप नहीं छोड़ना है। ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अपने डायरेक्शन देखना है कि उधर ही जाना है, मेरे को करना है दिसंबर में, आई हैव टू कंप्लीट। मतलब चिल होकर के पढ़ाई किया, मजे आते थे क्लासेस करने में? बहुत। लॉ मेरे को पसंद नहीं था पहले, बट देन आई स्टार्टेड डूइंग द क्लासेस, और उसके बाद मजा आने लगा, तो कंप्लीटेड बहुत अच्छे से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम। तो भाई चिल लेकर के एंजॉय करके पढ़ाई करो, आराम से, कोई टेंशन वेंशन मत लो। जिवेंद्र, ओवर टू यू जिवेंद्र। सर हम जो चैप्टर करता था वो एकदम सबसे अच्छा तरीका से करता था। तो हम ऐसा टारगेट था कि सारा चैप्टर हुए, लेकिन जो एग्जाम में ज्यादा आता था उसको एकदम परफेक्ट करके जाए।
जो ज्यादा मार्क्स का वेटेज था जिसका, उसको एकदम कंप्लीटली एकदम बहुत बढ़िया, ये वो हमारे गलती को नहीं फिफ्थ हुआ है, सक्सेस मंत्र मिल रहा है। फिफ्थ तो वो मिल चुका गलती था, नहीं है। प्रगति से एंजॉय करके पढ़ो। सिक्स सक्सेस मंत्र मिल रहा है कि हाई वेटेज जो चैप्टर्स है पहले उनको सारे अपना एनर्जी डिवोट कर दो हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स में आप 5 पढ़ना एथिक्स का पढ़ेंगे, खाली 5 पढ़ना एथिक्स का, तो आपको 10 नंबर का मिल रहा है। वो 5 पेजेस ओनली 5 पेजेस आपको 10 मार्क्स का मिल रहा है। तो वो सब आपको जो है ना पहचानना पड़ेगा। राइट जिवेंद्र, और बोलो। तो 6 सक्सेस मंत्र मिल चुका है। मतलब जितना देर भी पढ़ो उतना पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए था। बस हम 4-5 घंटा ही पढ़ा, लेकिन उसमें एकदम अच्छा से पढ़ा, जैसे ग्रेट, एकदम कॉन्सेंट्रेट। मतलब एकदम प्रोडक्टिव और क्वालिटी आवर्स जो है वो पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 10-12 घंटा पढ़ना जरूरी है, यहाँ पर कोई भी 10-12 घंटा मेरे ख्याल से डेली नहीं पढ़ता होगा। राइट, फिर वीडियो देखो, अगर 2-3 घंटा पढ़ लो, 4-5 घंटा पढ़ लो, एकदम अच्छा से। ऑसम ऑसम। सावन, योर सक्सेस स्ट्रेटजी। Yes, sir. I studied around 6 to 7 hours, not more than that. And the best thing, I think, the mock test paper helped me a lot. So Oh, attempting great. the mock test paper helped me a lot, especially in these online exams. And the best thing I have done is that exams se ek din pehle, like I planned how I'll be utilizing for the 3 hours. So I planned that first 1 hour I will be giving for section A and B, and the next 1.5 hour for the section C and D, and the last half an hour I'll be looking for whatever I have missed in section A and B and for others. So this was my overall planning. मतलब एग्जाम को भी स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, खाली एग्जाम के पहले स्ट्रेटेजी बनाने से नहीं होगा। ओके, ड्यूरिंग द एग्जाम आल्सो यू हैव टू मेक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। लाइक सेक्शन ए एंड बी सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, 40 मार्क्स का वही है, तो उसको 45 मिनट्स टू 1 आवर दे दिया, and then section C and then at last section D. I totally agree with that. Absolutely. Suman, what's your strategy? तो 7 success strategy आ चुका है हम लोग के पास, 7 से 8। Yes, Suman. Rigorously follow the institute material, and Absolutely. I went for solving all the previous years. And whenever I used to study the theory subjects like law or something like that, I used to see your revision videos, because theory subjects become a lot time consuming and boring when you are not equipped with a proper video. So Yep. I used to see your videos and Great. then go for all the theory subjects like law, audit, which make practical aspect आ जाता है theory का। मैंने सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हम गए थे और वेटेज फॉलो किया था। जैसे एबीसी एनालिसिस तो बहुत ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट है। वेटेज आपने तो फॉलो किया, लेकिन और किसी ने फॉलो Institute में नहीं है, किया। क्वेश्चन पेपर में तो वेटेज नहीं फॉलो हुआ, कुछ भी बट फॉलो नहीं हुआ था सर। हाँ, बट हाँ, बट सारा सिलेबस कंप्लीट करके गए थे, लेकिन होता है ना कि यस इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, उस तरह से यस वैसे यस हम एब्सोल्युटली, सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट करके जाइए। ठीक है। एनीवन वुड लाइक टू ऐड ऑन एनीथिंग फर्दर? सर एक चीज बोलना था सर, आपका अकाउंट्स का गुडविल और कंपनी अकाउंट्स का कैश फ्लो का क्लास किया था सर, ये दोनों मेरा फेवरेट क्लास है सर। इतना इजीली आप कैश फ्लो करवा दिए थे सर, एकदम माथा में अभी भी याद है हमको सारा चीज आप पढ़ाए थे वो लोग का। ऐसे सारा ही याद है, लेकिन ये दो तो एकदम स्पेशल। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच जिवेंद्र। तो एमईपीएल आपको को क्या लगता है, मतलब कुछ हेल्प किया एमईपीएल आपके पढ़ाई को आसान बनाने में, इस जर्नी को आसान बनाने में? एनी फीडबैक ऑन एमईपीएल? सर मटेरियल टू क्लासेस एवरीथिंग इज परफेक्ट। मटेरियल है, क्लासेस है, उसके बाद आपको बस अपना मेहनत लगाना है। सारे क्लासेस कर लिया आपने, जैसे स्टार्टिंग के क्लासेस में बोला था कि एक वीक में 40 क्लासेस एंड रिवीजन यू विल गेट अ रैंक। यस, आपने कहा था वी डिड फॉलो इट एंड हियर वी आर। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग ऐसा नहीं है कि बस बच्चों का हाथ छोड़ देते हैं। एग्जाम वाले दिन तक हम लोग को लगता है हमारा ही एग्जाम है, एग्जाम वाले दिन तक डटे रहते हैं, चाहे वो मैराथन रिवीजन हो, चाहे वो हौसला अफजाई करना हो। ठीक है, वो भी जरूरी रहता है। जैसे अपने कोई बड़े भाई कोई बड़े बहन पुश कर रहे हैं कि नहीं भाई थोड़ा सा और चलो, ठीक है, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम जो है ना अच्छे से अभी भी डटे रहो, तुम्हारे साथ अंत में अच्छा हो जाएगा। तो वेदर इट बी मैराथन रिवीजन, बूस्टर रिवीजन, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करवाना, वो सब लास्ट तक हम लोग करते हैं। और आई एम वेरी ग्लैड दैट स्टूडेंट्स लोग भी जब इतना बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आते हैं तो थोड़ा सा उन लोग भी जो क्रेडिट है वो हम लोग को देते हैं। हालांकि पूरा हार्डवर्क उन्हीं का रहता है, बट इट्स वेरी नाइस टू बिकम पार्ट ऑफ समवन सक्सेस। एंड बिल्कुल जो बच्चे नहीं क्लियर हो सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टिल आवर लास्ट ब्रेथ।
और उनको हम लोग क्लियर करवा करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ, जो लोग नहीं क्लियर कर सके हैं, क्लियर तो करवा करके छोड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारना है, ओके, डोंट लूज एनी होप, राइट। And once again, I congratulate all of you. Any last minute words, any last minute suggestion, any last minute words from all of you? Sir, believe by yourselves. Yes, believe in yourself. Correct. Well said. Anyone would like to add anything else? ये सब इंटरव्यूज जो है रैंकर्स का, कुछ लोग जो है इसको सोच सकते हैं ये पब्लिसिटी के लिए है, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं ये इंस्पिरेशन के लिए है। अब हम लोग कितना बार भी बोल दे कि ये इंस्पिरेशन के लिए है, जिसको सोचना होगा कि ये पब्लिसिटी के लिए है तो वो सोचेगा ही, मैं उसका सोच बदल नहीं सकता, ठीक है। इसका ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन रहता है, बोलते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन रहता है, सेम चीज के ऊपर लोग अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। हमारा प्राइमरी इंटेंट यही रहता है कि लोग इंस्पायर हो, हार्डवर्क करें, मोटिवेटेड रहें, अपने मम्मी पापा का, पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। दैट्स इट, दैट्स द ओनली गोल ऑफ आवर्स। तो आप लोग भी जब पहले वीडियोस वगैरह देखे होंगे रैंक होल्डर्स का, क्या लगता है उससे कुछ इंस्पिरेशन वगैरह मिलता है क्या? सर उनका देखकर ही फॉलो किया था, उन्होंने ही बोला कि सब कुछ जैसे कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल को अच्छे से करो, फिर आपका जो भी डिवीजन वीडियोस था वो इम्पोर्टेंट था, और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स। इस बार क्वेश्चंस आए नहीं थे प्रीवियस ईयर से, बट फिर भी कॉन्फिडेंस है तो हेल्प बहुत हुआ। लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। हो जाता है ना। यस यस प्रगति, कि जो पेपर स्ट्रांग है उसको तो और ज्यादा पढ़ना है, और उसके मैराथन वीडियो जरूर करने, न्यूमेरिकल करने, वर्कबुक जितना जहां से प्रैक्टिस हो सके सब बटोर लो। बहुत मटेरियल है बाहर, जब पढ़ना होगा तो सब दिखेगा। नेट डिस्टर्ब हो गया प्रगति, नेट डिस्टर्ब हो गया तुम्हारा, प्रगति तुम्हारा नेट डिस्टर्ब हो गया, इंटरनेट फ्लक्चुएट कर गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ प्रगति, इट्स बैक। कैन यू हियर मी नाउ सर? यस, यू आर ऑडिबल। मतलब कि मटेरियल बहुत है, आपको पढ़ना है तो आप कहीं से भी लेके पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना तो वो कुछ नहीं दिखेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट। हम लोग भी स्टार्टिंग में, आप लास्ट ईयर हमेशा पोस्ट करते हो इंटरव्यूअर्स लेते हो रैंकर्स के, तो वी लर्न फ्रॉम देयर कि उन्होंने कैसे किया, हम भी वो फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे तुम लोग का सीएमए इंटर में आ गया, तुम लोग सीएमए फाइनल का रैंकर्स का इंटरव्यू देखो। हाँ। अभी जब मैं ये इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी जब मैं ये इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ, मैंने एक इंटरव्यू डाला है ऑल इंडिया रैंक 8 का सीएमए फाइनल, जिसका इंटर में भी मेरे यहाँ पर पढ़ करके रैंक आया था, फाइनल में भी मेरे यहाँ पर पढ़ करके रैंक आया। डिम्पल अग्रवाल, सीएमए इंटर ऑल इंडिया रैंक 4 आया था डिम्पल अग्रवाल का, और अभी सीएमए फाइनल में इसी टर्म में ऑल इंडिया रैंक 8 आया है। हम लोग भी सब आएंगे सर फिर। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल आएंगे। चलो इंटरव्यू यहीं तक स्टॉप करते हैं। विश यू लोड्स ऑफ सक्सेस, और यहाँ पर रुकना नहीं है आप लोग को। सीएमए इंटर में रैंक ले आए, कुछ भूलने का दरकार नहीं है, सीएमए फाइनल भी इसको रिपीट करना है, ठीक है। चलो लोड्स ऑफ सक्सेस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.